6 نومبر 1947 یہ وہ دن تھا جب جموں کی سرزمین معصوم کشمیریوں کے خون سے سرخ ہوئی۔ ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے نکلے، منزل تھی پاکستان، مگر راستہ موت کا سفر بن گیا۔ میں ہوں ارشد رچال، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز۔ آج ہم بات کریں گے اس سانحہ کی جو کشمیر کی تاریخ کا سب سے خون آلود باب بن گیا۔ 6 نومبر 1947 جموں و کشمیر کی تاریخ کا ایک ایسا دن جو ہمیشہ خون، ظلم اور قربانی کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اسی دن ہزاروں معصوم کشمیری مسلمان جموں کے مختلف علاقوں میں قتل عام کا نشانہ بنے جب وہ پاکستان ہجرت کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکلے۔ ان کے خون سے جموں کی سرزمین سرخ ہو گئی اور یہ واقعہ آج بھی شدائے جموں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت ریاست جموں و کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے غیر جانبدار رہنے کی کوشش کی، مگر سیاسی دباؤ، خوف اور سازشوں نے ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا جس نے اس خطے کی تقدیر بدل دی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے شروع ہوا۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت 1947 میں ریاست جموں و کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی جس پر مہاراجہ ہری سنگھ کی ہندو حکومت قائم تھی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کے بعد ریاست میں سیاسی بے چینی بڑھنے لگی۔ کشمیری مسلمانوں کی اکثریت پاکستان سے الحاق چاہتی تھی، لیکن مہاراجہ کسی کے ساتھ الحاق نہیں چاہتا تھا اور ہندوستان کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ جب اسٹینڈ سٹل معاہدہ، جس کا مطلب جو سروسز جہاں سے آ رہی ہے جو اسی طرح جاری رہیں گی، جیسے تیل، اناج، ٹرانسپورٹ، ڈاک وغیرہ، اب جموں کشمیر کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان دونوں ہمسائے ممالک بن چکے تھے اور دونوں ممالک کے راستے جموں و کشمیر سے لگتے تھے۔ مہاراجہ نے دونوں ممالک کے ساتھ اسٹینڈ سٹل معاہدہ کے لیے کاغذات بھیجے۔ پاکستان نے فوراً معاہدہ کو تسلیم کر لیا اور ہندوستان نے سوچنے کا وقت مانگ لیا۔ پھر 14 اگست 1947 سے لے کر 22 اکتوبر تک جموں و کشمیر میں ضروریات زندگی کی ہر شے پاکستان سے جاتی تھی۔ جموں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے پاس دیگر پرنسلی ریاستوں کی طرح یہ حق محفوظ تھا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کریں یا آزاد و خود مختار رہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے خود مختار ریاست رہنے کا فیصلہ کیا اور اسٹینڈ سٹل معاہدے کے مطابق پاکستان کے ساتھ بنیادی ضروریات زندگی اور تجارتی تعلقات برقرار رکھے۔ اس کے باوجود سردار ولبھ بھائی پٹیل کے دباؤ پر بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن مہاراجہ ہری سنگھ پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن سری نگر آئے تاکہ معاملہ طے ہو، لیکن بات چیت ناکام رہی۔ مہاراجہ کے ہندوستان کے ساتھ میل جول کی خبریں پھیلنے پر مقامی مسلمانوں میں خوف پیدا ہوا کہ ریاست ہندوستان کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے۔ اس خوف اور عدم اعتماد کے نتیجے میں مقامی مسلم تحریکیں شروع ہوئیں جنہیں قبائلی اور مقامی مجاہدین نے سپورٹ کیا اور اس طرح 1947 میں شورش برپا ہو گئی۔ شورش کے دوران قبائلی مددگار اور مقامی مجاہدین نے پہلے مظفر آباد کو فتح کیا اور 24 اکتوبر تک قبائلی اور مقامی مجاہدین بارہمولہ پہنچ چکے تھے اور 24 اکتوبر کو آزاد کشمیر حکومت کا اعلان کر دیا گیا اور 26 اکتوبر کو ہندوستان نے بلیک میل کر کے مہاراجہ ہری سنگھ سے ایک عارضی معاہدہ لیا۔ جس کے بعد 27 اکتوبر کو امدادی افواج کے نام پر ہندوستانی افواج سری نگر میں اتر گئی۔ اس فیصلے کے بعد ریاست میں ریاستی فوج، راشٹریہ سیوک سنگھ، RSS اور ہندو انتہا پسند گروپوں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اکتوبر 1947 میں جب پونچھ، میرپور اور دیگر علاقوں میں آزادی کی تحریک تیز ہوئی تو ہندوستانی افواج نے جموں کے مسلمانوں پر بدترین مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ اکتوبر کے آخر تک حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے اور پھر آیا وہ لمحہ جب 5 اور 6 نومبر کو ہجرت کے قافلے نکلے، مگر جموں کی زمین نے ان کا استقبال گولیوں، خنجر اور آگ سے کیا۔ وہ دن آج بھی کشمیر کے ضمیر پر نقش ہے۔
5 और 6 नवंबर 1947 को ये जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया जब हजारों मुसलमान मर्द, औरतें और बच्चे हिजरत के काफिलों की सूरत में सियालकोट और पाकिस्तान की सरहद की जानब रवां थे। जम्मू के मुख्तलिफ मकामात कठुआ, संबा, राजौरी, बेंबर और जम्मू कश्मीर के मसाफात में इन काफिलों पर रियासती अफवाज, डोगरा मिलिशिया और RSS के मुसल्लह गुंडों ने हमले किए। आईनी शादीन के मुताबिक हजारों लोगों को दरिया तवी के किनारे और रेलवे स्टेशन जम्मू पर गोलियों से भून दिया गया। ख्वातीन की बेहुरमती की, बच्चों का कत्ल किया और काफिलों को जिंदा जलाने जैसे लर्जाखेज मनाजर तारीख का स्याह तरीन बाब बन गए। बड़ा जुल्म हुआ जम्मू वालों के साथ, बड़ा नाकाबिले बयान में कह सकता हूँ। क्या बेटा मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं बाबा क्या बयान करता, सब्र खो देता हूँ। 6 नवंबर को जो लोग ट्रकों में बैठने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी की खात्मा कर दिया था। चले गए ट्रक, सबको पता है जी बाटर बन जाएंगे। शहर से 3 मील दूर जंगल में लेकर और उनकी टिक्का बॉडी की 5 नवंबर को भी फिर यही रिपीट हुआ 6 नवंबर को भी बेटा जी। उसी तरह ट्रकों में लोग बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, बैठ रहे हैं। हम जाते थे, हमें फिर धक्का पड़ता था। तुम्हें अल्लाह ने हमें सही सलामत सियालकोट पहुंचाना था। 2 नौजवान शहर के भागते भागते मगरिब की अज़ान के पुलिस लाइन में दाखिल हुए। उन्होंने कहा लोगों कोई ना जाना। जो 5 नवंबर को गए मार दिए गए, जो 6 को गए मार दिए गए। फिर क्या था, एक कुराम था, एक कुराम। बचने वाले तकरीबन 1 लाख के करीब वहाँ बैठे हुए थे। उनको धोखे से बुलाया गया, घर से मार दिया गया। बच्चियों को उठा कर ले गए। जो कई साल बाद कोई आए, कोई नहीं आए, कोई ये वो हकायक। फिर 11 नवंबर को आर्मी की निगरानी में वो काफिला, पहला और आखिरी, याद रखें लफ्ज़ मेरा, पहला और आखिरी काफिला वो बड़ी दूर पैदल चलते चलते बेटा। अगर उस ज़माने में जो ट्रक हिस्से में आए थे टूटे फूटे, बहुत दूर खड़े थे वो, बहुत सचेतगढ़ से बहुत आगे खड़े थे। उन्होंने हमें बिठाया जनाब। तो सियालकोट से कुछ शहर से बाहर पैलियों में उनको पता था कि जम्मू वाले आज आ रहे हैं। बस वो टेंट शेंट लगे हुए थे, तो वो तो बैठे थे। कौन रोटी खाता, मसाला की दाल और कौन खाता, कोई नहीं खाता था। कत्ले आम के बाद लाखों कश्मीरी अपने घरों से बेदखल हो गए। कुछ पाकिस्तान पहुंच गए और कुछ आज भी तकसीम की इस लकीर के उस पार रह गए। उनकी अगली नस्लें आज भी अपने आबाई घरों को याद करती हैं और शुदा की कुर्बानियों को अपनी पहचान समझती हैं। मौरखीन और मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख से जायद कश्मीरी मुसलमान इस कत्लेआम में शहीद किए गए। शोरश और तकसीम हिंद बाज़ार 2 अलग वाक़यात थे, मगर इंजाम एक सा हुआ। 14 अगस्त 1947 को बरे-सगीर 2 मुल्कों में बटा, मगर इस तकसीम ने नफरत, कत्ल गारत और हिजरत का ऐसा सिलसिला छेड़ दिया जिसने पूरे खित्ते के अमन को निगल लिया। पाकिस्तान और भारत का क़याम एक सियासी मुआहदे और असूली फैसले के तहत हुआ, मगर इस मौका पर इंसानियत सबसे बड़ी कीमत अदा कर गई। शोरश के दौरान सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि लाखों हिंदू और सिख भी बेगुनाह मारे गए। पहले हम आंगी, दोस्ती और साझे दुख सुख के रिश्ते कायम थे, मगर शोरश और फिरका वारियत ने सब कुछ निगल लिया। लाखों लोग हिजरत पर मजबूर हुए, बेगुनाह अफराद मारे गए और खानदान बिखर गए। तारीख गवाह है, जुल्म कभी दुआम नहीं पाता और एक दिन इंसाफ जरूर होता है, क्योंकि अल्लाह की अदालत खामोश नहीं रहती। लेकिन हम आज उन लोगों को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने मजहब को एक तरफ रखकर इंसानियत की मदद की और एक दूसरे की जान बचाने में और उनके ठिकानों तक पहुंचाने में उनकी मदद की। तकरीबन 5 लाख से ज्यादा अफराद हिजरत पर मजबूर हुए, जिनमें से हजारों रास्ते में मारे गए। जम्मू का मुस्लिम तनासब 1941 में 61% था, जो 1948 में घटकर 31% रह गया।
इससे जाहिर होता है कि किस पैमाने पर आबादी को खत्म किया गया। बदकिस्मती से उस वक्त बैनुल अक़वामी बरादरी ने इस जुल्म पर खातिरख्वाह रद्द अमल न दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अगर चाहे बाद में मसला कश्मीर पर करारदादें मंजूर की, मगर जम्मू के कत्ल आम पर कोई मखसूस कार्रवाई न की गई। इस खामोशी ने कश्मीरी अवाम के दिलों में एक दायमी जख्म छोड़ दिया। जम्मू, सांबा और कठुआ से निकलने वाले हजारों कश्मीरी मुसलमान सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात और रावलपिंडी के इलाकों में पनाह गजीन बन गए। इनमें से कई खानदान आज भी आज़ाद जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम हैं। ये लोग आज भी अपने आबाई घरों की याद में वापसी का ख्वाब देखते हैं। यौम शुदायत जम्मू की याद हर साल 6 नवंबर आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, बरतानिया, यूरोप, खलीजी ममालिक और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी इस दिन को यौम शुदायत जम्मू के तौर पर मनाते हैं। इस दिन कुरान ख्वानी, रैलियां, सेमिनार, तकरीबात का इनकाद किया जाता है, जिनमें शुदा को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। इस दिन इस अज़म की तजदीद भी है कि कश्मीर की आज़ादी की जिदोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक आके खुद अरादियत तस्लीम नहीं किया जाता। जम्मू के मुसलमानों को शहीद किया गया। 123 देहातों की मुस्लिम आबादी को डीपॉपुलेट किया गया। जनूबी एशिया ने ऐसा जेनोसाइड नहीं देखा। इससे पहले जो भारतीय फौज ने आरएसएस के गुंडों के साथ और डोगरा फौज के साथ मिलकर जम्मू के अंदर जो जेनोसाइड किया है, इसकी मिसाल तारीख इंसानी में नहीं मिलती। 6 नवंबर 1947 का सानिया महज एक माजी का वाकया नहीं, बल्कि कश्मीर की इज्तिमाई यादाश्त का हिस्सा है। यह दिन याद दिलाता है कि आज़ादी, शनाख्त और इंसाफ के लिए कश्मीरियों ने किस कदर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज भी जम्मू के शुदा की कुर्बानियां हक़ खुद आरादियत की तहरीक की बुनियाद हैं, और ये तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जम्मू और कश्मीर के अवाम को इनका सियासी, आइनी और इंसानी हक मिल नहीं जाता। आज के दिन शुदाए जम्मू की कुर्बानियों को लोग सलाम पेश करते हैं। इनका लहू कश्मीर की आज़ादी की जमानत है। आज 78 बरस गुजर जाने के बावजूद जम्मू और कश्मीर की सरजमीन पर वही खूनी लकीर अब तक कायम है जो 1947 में खींची गई थी। रियासत के दोनों हिस्से आज भी तकसीम और अस्करी मुहासरे की अलामत बने हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद मसला कश्मीर ताहाल अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है, मगर अमली तौर पर दुनिया की खामोशी कश्मीरी अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। गुज़श्ता 7 दहाइयों में भारतीय फौज के हाथों मजीद 2 लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। इनमें औरतें, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब शामिल हैं जो सिर्फ अपने हक़ खुद अरादियत का मुतालबा कर रहे थे। आज भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मासरे, लापता अफराद, जाली मुकाबले और इज़हारे राय पर पाबंदियां जारी हैं। घर, मस्जिदें और कब्रिस्तान सब खामोश गवाह हैं कि कश्मीर में जुल्म का सिलसिला रुका नहीं बल्कि और गहरा हो गया है। ताहम तमाम तर मजालिम के बावजूद कश्मीर की तहरीक आज़ादी जिंदा है और शुदाए जम्मू का लहू आज भी आज़ादी और इंसाफ की रोशनी बनकर जल रहा है। 6 नवंबर सिर्फ एक याद नहीं, एक ऐद है, और शुदा जम्मू का लहू रहेगा नहीं जाएगा। इनकी कुर्बानियां आज भी कश्मीर की आज़ादी की बुनियाद हैं, जिनका खून आज भी आके खुद अरादियत की रोशनी बनकर जल रहा है। अरशद चाल को इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़।